मतलब आप एक एक शब्द जो डेफ में लिखा हुआ है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें एक एक शब्द पे भी क्वेश्चन बन सकता है। Personality is not something which can be developed in 1 week or 2 weeks or 6 weeks or even 2 months or 3 months. Personality is developed over a period of time. तो आपको जो पता है आप वाराणसी से हैं या वाराणसी में पैदा हुए, और अगर आपने वाराणसी की तैयारी नहीं की, तो माय माइंड दैट्स ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जो उन्होंने नहीं पढ़ी होती उनकी तरफ पूरा ध्यान होता है और टेक्नोलॉजी वो बिल्कुल भूल चुके होते हैं। कैसे बैठना है आपको वो सीखना चाहिए। सो नेवर एवर आस्क हाउ मेनी मार्क्स विल आई गेट, बिकॉज इट इज़ मीनिंगलेस। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज गेट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वेयर and how should you improve your performance. Hello friends, a very good morning to all of you, and to begin with I would like to congratulate all those candidates who have been able to make it to the level of clearing mains and are getting ready to go for their personality test or an interview. Now this is very interesting that this used to be called personality test historically. It is a personality test, but for the sake of clarity, quite often the word interview is also used. So let us be clear about it. It is a test of personality, and interview is the methodology for testing the personality of the candidate. One other thing often missed out by the candidates is to know that what is it that the interviewers or the board members are looking for or looking into the personality of the candidate. Now this is very important. And this particular interview is different from all other interviews in the sense that interview is a two-way traffic where both sides are interacting with each other, and it is in a dialogue format. But in personality test, it is not an interview. So there's no two-way communication. Largely it is a set of questions asked by the board members to test the personality of the candidate, and the candidate, what is expected out of the candidate is, number one, and most importantly, is the integrity. Now integrity of the candidate, sometimes in very simple language it is called honesty also, but integrity is a much wider, better, more sensible term. So integrity is the first thing which is to be tested out in a candidate. That's number one. Number two, neutrality. When we talk about neutrality, neutrality means the candidate must be neutral in terms of gender, neutral in terms of religion, neutral in terms of the surnames, caste, neutral in terms of states, neutral in every single way. The candidate must be neutral. So neutrality is the second most important trait expected from these candidates. The third is the commitment and dedication, and this commitment and dedication is for the nation, for the sovereign, for the country, for the constitution. And then comes a very important aspect, and that is again very unique to this particular personality test. That is the perspective. Now this perspective is very often not understood by the candidate, and perspective means something like you should be able to have a 360-degree view of anything, any situation, anytime, anywhere. What it means is you should be able to think through the lens of the various stakeholders involved in a process. Now supposing there's a trouble in a particular village, and obviously there are two parties and there are lots of other issues involved. There's a government side to it, there are two factions fighting for it, etc. So this particular officer should be able to understand the perspective of all different parties by stepping into their shoes, to be able to understand and appreciate
the issue from the perspective of different stakeholders. That is a way of understanding things in a very, very clear manner. Again, I repeat, 360-degree view of a situation, if the candidate can take, that is what is expected from the candidate. And obviously, next important thing goes is communication, because as an administrative officer, many times you're leading the administration, you're leading the people, and sometimes you're talking with kids, sometimes you're talking with young children, school going, sometimes you're talking with college going, university going students, sometimes you're talking with senior citizens. So you have a diverse public and diverse set of people with whom you need to communicate. कभी आपको 1000 लोगों की भीड़ को एड्रेस करना है, कभी आपको 5 लोगों से बात करनी है, कभी आपको नेताजी से बात करनी है, कभी आपको मंत्री जी से बात करनी है. तो आपकी जो कम्युनिकेशन की क्षमताएं हैं, using the right words, using the right sentences, using the right language, changing the wordings according to the situation. So this particular thing, that is communication, is another important aspect which is being checked. And the last in the order of these things is leadership. Okay, so again, this gentleman becomes a role model, and a lot of people look up to an IAS officer, and they would like to see him as a leader who can lead from the front. So these are the qualities. Again, I'll repeat: integrity, number 1; neutrality, number 2; commitment and dedication, number 3; communication, or again 360-degree view of things, communication and leadership. So this is what is being tested in a candidate. Very often people have asked me, is it possible to check the integrity of a person in only 30 minutes? And it's very interesting. There's a time given to the candidate is only 30 minutes, and so the question is valid, but the answer is there are 5 persons sitting in the board, and this board is rightly called board and quite often wrongly called panel. Board is the right term, and board is headed by a UPSC member who is called president of the board. So president of the board is a constant in that particular board, and the other 4 members change every week. Every week means Monday to Friday. The 4 members keep changing. The 5th member, that is the president of the board, sometimes we call him chairman in our day-to-day language, sometimes we call panel for the board, but the right term is board and the president. So the president is UPSC member, and the interview takes place in his room. Okay, and so one should know that this is the structure of the interview place, and the time given is 6 candidates in the morning session. Sessions are divided into forenoon and afternoon. And forenoon starts at 10 o'clock, completes at 1 o'clock, that is 3 hours. After 1 to 2 is lunch. 2 p.m. to 5 p.m. another 3 hours, again divided into half an hour each. 6 candidates in the afternoon, 6 candidates in the morning. So 12 candidates per board per day is the norm, except Monday. Monday, because people like me who are called there, they are called advisors. We are one of the 4 members who are called there. We are called advisors. That's the right term. That's the term written in our appointment letter. And advisors are asked to report at between 9:15 around that time. And 9:30 they are taken to a conference room in the UPSC building, where all these advisors like me would be sitting, and then finally the UPSC members walk in. Currently there are 7 UPSC members. Last year the number of UPSC members was 5. Today is the 7, and UPSC can go up to 10 members in addition to chairman. So last year it was chairman plus 5. Now it is in 2025. Now it is 1 plus 7. So last year there were 4 boards, and this year I am expecting 6 boards, but in any case not less than 5 boards. So per board I said 6 in the morning, 6 in the afternoon sessions, so 12 members per day, Monday to Friday, except Monday when we are called at 9:30, and we are given briefing at around 9:30 by the chairman of UPSC
We are made to sit there. It's a big room, conference room, and we are sitting on the periphery, in the inner periphery. The UPSC members come, and it's a oval-shaped or round table where UPSC members come and sit, and finally UPSC chairman comes. He introduces UPSC members to the advisors. He also introduces himself, and then we advisors are asked to introduce ourselves to the UPSC members. We are also given the opportunity to ask any questions if we have any questions. I remember when I started, Mr. Mata Prasad was the chairman way back 2003, 2004, I recollect. He was the guy who was chief secretary of UP once upon a time. And he was the man who opened the Ayodhya Ram Mandir temple when Rajiv Gandhi was the prime minister. I don't forget that. And Mata Prasad ji was addressing us. That was my first such interaction. And any and every question, like I asked, agar cuff ke button khule ho to number cut jayenge kya? He said no. I asked about tie ठीक से नहीं पहनी हो तो number cut जाए क्या? He said no. Like I said, Hindi English mixed में अगर candidate बोल रहा है तो number cut जाए क्या? बोले no. Then you should not and you cannot ask political questions. हर चीज़ में ना थी. So this was my experience for the first time. Over a period of time, I have seen number of UPSC chairmen because I have been going there from right up to 2016. And because I have been into not only civil service exam personality test, I have also been into Indian Forest Service. I have also been into CAPF का पहली बार 2011 में हुआ, मैं उस बोर्ड में भी था. And I have been going for different kinds of services for a very long time. So I have been seeing these practices. But when I tell about various different chairmen, I am reminded of Professor D.P. Agrawal. He happened to be IIT Delhi professor, so accidentally known to me personally. And Professor D.P. Agrawal started very young as a member, and then he continued right up to chairman, and he is one of the very few who completed his complete term. Otherwise, most of the chairmen do few months or 1 or 2 or max 3 years. They don't get 5 years complete term because the age profile and because of their seniority, etc. But Professor D.P. Agrawal, when he became chairman, he was the only one I have seen who used to tell the advisors what is expected of you and what is it that you have to see in the candidates. But उनसे पहले और उनके बाद में ये मैंने कभी देखा नहीं, तो I'm just sharing that with you. So by the time it is 10:30, you are taken to the room. There's an attendant who will take advisors of A group or B group or C group or whatever 4, 5, 6 जितने भी बोर्ड्स होते हैं, उन बोर्ड्स में एक अटेंडेंट आपको लेके जाता है और पीछे वो यूपीएससी के मेंबर आते हैं. तो आपकी पहला इंटरव्यू 10:30 पे मंडे को स्टार्ट होता है इंस्टेड ऑफ 10 o'clock. तो एक कैंडिडेट आपको हफ्ते में कम मिलता है. अदरवाइज 5 days Monday to Friday, 5 days into 12 candidates, 6 before lunch, 6 after lunch, 60 की जगह 59 पर बोर्ड पर वीक कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होते हैं. Now this year is going to be different, and different because number one, this year result is declared earlier, number one. Number two, the boards are likely to go up by 2 in number. Number three, last 3 years at least, interviews have been starting in January and going right up to April, first, second, third week also sometimes because of holy holiday and then because of many other reasons. But this year may start earlier in December and finish, I would think, by March. That's my guess. It should finish definitely by March. So this year, this is one change. Number of UPSC members have gone up, number one. Number two, बोर्ड मेंबर ऑटोमेटिकली बोर्ड्स बढ़ जाएंगे तो ये फास्ट हो जाएगा. नंबर 3, दिसंबर में स्टार्ट होगा जनवरी की जगह, तो थोड़ा जल्दी चलेगा. सो दिस विल बी अनदर मेजर चेंज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स. सो द कैंडिडेट शुड बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स. Well, I was talking about what is expected of a candidate in UPSC personality test. And UPSC personality test also is different from many other tests, like very often people ask how is it different from SSB, Service Selection Board, which is for defense forces. And that's one area where it is different. Second is how is it different from corporate interviews.
So two important things. One is Service Selection Board includes physical hurdles, for example, and that goes on for about 4 or 5 days in a continuous way. But this is just half an hour. So the other difference is in SSB there's a psychologist sitting there, and I remember in late 90s, even TCS, when it used to come for campus recruitment in colleges and universities, it was also bringing psychologists for selection of the students for TCS. So there's no psychologist sitting in UPSC for this particular thing. This is one difference. Another, very often people ask, do they check for OLQs? Do they check for officer-like qualities? Just like in case of defense forces, officer-like qualities are, that's very clearly told that that's a parameter to be looked into. Now let me tell you, there's nothing, no instructions given. As I told you, the chairman UPSC does the briefing on Monday morning. OLQ word is not used there, and officer-like qualities is not expressly told to be considered. As I gave the example कि आपके कफ के बटन खुले हुए हैं या आप भाषा का प्रयोग हिंदी इंग्लिश का मिक्स कर रहे हैं. Now this kind of thing may not be acceptable in defense forces, but here that is not something which is being looked into. But let me also share, having said that, in an informal setup, in a subconscious mind, anything you do which is not like an officer will get reflected in the subconscious mind of the interviewer. So you do lose marks for not conducting yourself properly like an officer, but on the face of it, OLQ is not being tested. So this was the part which I was talking earlier कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है और आप किस तरह से कंडक्ट करेंगे. दूसरा मैंने आपको बताया यूपीएससी में इंटरव्यू इस बार किस तरह से होंगे क्योंकि 2 मेंबर बढ़ गए हैं. दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द पास्ट. नाउ वी कम टू हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ from this point onwards, because first thing you have to do is to do time planning, because interview will run from December to March. You may get a call maybe end of December, maybe in January, maybe in February, maybe in March. तो सब लोगों के टाइम फ्रेम्स अलग अलग होंगे, तो तैयारी का लेवल, तैयारी की स्पीड, तैयारी की प्रिपरेशन अलग अलग होगी. तो one should be mindful of that. That should be taken at the back of the mind. Though, again I repeat, personality is not something which can be developed in 1 week or 2 weeks or 6 weeks or even 2 months or 3 months. Personality is developed over a period of time. So those who are the beginners, I would suggest them to start paying attention to the development of personality right from day one, not after declaration of result of mains. Okay? And now अब डेफ भरने का सिस्टम भी चेंज हो गया है. आपको बिगनिंग में ही डेफ में ये सब बताना पड़ता है, आपको कैसी सर्विस चाहिए, क्या चाहिए. तो आपकी पर्सनैलिटी का इवोल्यूशन, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी उसी स्टाइल और मोमेंटम में होना चाहिए. एंड दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट इन द बिगनिंग, नॉट एट द एंड. सो दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर द बिगिनर्स, not only for those who have made it in the mains. Now the second thing is, I told you what is expected of the candidate. That's number one. Number two is, what is expected of the candidate in terms of preparation is to be able to anticipate questions. Now this is very, very important. Now when I say anticipate questions, a lot of people wrongly, and it's a myth, there are lots of myths, we'll keep talking about it. There's a myth that people go for transcripts which are provided by many coaching institutions. Let me share with you, this concept of transcript to my mind is completely bad, wrong, because the people who sit in mock interviews, and very unfortunately many of them would have never gone to UPSC to take interview there, and many times they give inputs which are not very accurate or right also. And so what happens is this process of anticipating of questions through transcripts is content oriented, content generated. तो किसी ने इंटरव्यू दिया और उसने आके लिख दिए 15-20 क्वेश्चन, मुझसे ये पूछा था, मुझसे ये पूछा था, वगैरह वगैरह वगैरह. But the fact of the matter is, neither is he writing the right words which were used in asking the question,
And what is more important is उसने जवाब क्या दिया, what is the answer. So what is more important is the answer and how did he handle the question and how did he manage the answer. तो वो वाला हिस्सा तो ट्रांसक्रिप्ट में आया नहीं, और आप जो है ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते चले जा रहे हैं. That is a very wrong thing, and very unfortunately in mock interviews, in feedback, very often the interviewers give them ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, everything is content oriented, ये नहीं पढ़ा तो वो देख लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना. It is not important. What is important is जितना आपको आता है आप बोलते कैसे हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, are you able to communicate effectively or not, और जितना आता है ठीक से आता है कि नहीं आता. That is what is important. So I am cautioning the candidates here to be mindful of, in fact, if you ask me, I would suggest never to even refer to transcript. But for the sake of understanding, अगर आप एक दो बार तीन बार देख भी नहीं transcript, there is nothing wrong in it, but don't depend on transcript. So anticipation of questions, where I started from, you must anticipate questions starting from your DAF. So number one, DAF. अब DAF कहाँ से start होता है? अब DAF में सबसे ऊपर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ. अब जहाँ यूनियन वर्ड लिखा है, पहला क्वेश्चन वहीं से बन सकता है, यूनियन, सेंट्रल और फेडरल में क्या अंतर होता है. इट कुड बी क्वेश्चन. सेकेंड इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा है, आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली ऑटोमेशन हम लोगों ने ऐड किया, डैफ का हमने फॉर्मेट चेंज किया है, हमने AI इंट्रोड्यूस किया है. सो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस एज ए कैंडिडेट इन फिलिंग अप दोज फॉर्म्स? कैन यू गिव सम फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सिस्टम? अब ये UPSC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे ये पूछा जा सकता है UPSC में लास्ट रिफॉर्म्स कब हुए थे, कैसे हुए थे. सो ऑल दोज क्वेश्चंस रिलेटिंग टू UPSC कैन बी आस्क्ड. वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन यूज्ड टू बी अर्लियर, आई यूज्ड टू आस्क कि ये जो पार्लियामेंट हाउस है, पुराना वाला हो गया अब तो, वो गोल है, और UPSC की जो बिल्डिंग है वो भी गोल है, और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है वो भी गोल है, तो ये तीनों बिल्डिंग गोल क्यों हैं? दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ द क्वेश्चंस आई यूज्ड टू आस्क वेरी often in my interviews, and obviously I mean there's no standard answer to this, but you get to know the mind of the candidate. So many times questions asked are such कि आप बाहर आके सोचो आपने अच्छा बोला या ठीक बोला या गलत बोला. ठीक बोला या गलत बोला is not important. If I was asking you this question, I want to read your mind कि आप अपनी स्टोरी कहाँ से शुरू करते हो. आर्किटेक्चर से शुरू करते हो, हिस्ट्री से शुरू करते हो, बिल्डिंग तो वो तीनों वही हैं. अब कौन सी बिल्डिंग कब बनी आपको वो भी पता भी है कि नहीं पता, और आप अपने जवाब को स्ट्रक्चर कैसे करते हो. तो हम ये देख रहे हैं आप अपने जवाब को स्ट्रक्चर कैसे करते हो. अब ये तो नहीं एक्सपेक्टेड किसी से कि इसका कोई बहुत ही एप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर देगा इस सवाल का. तो जो पूछने वाले का नज़रिया होता है, अगर आप वो समझें और उस हिसाब से जवाब दें, तब उसकी वैल्यू कुछ और होती है. तो दैट इज़ वेयर आई वाज टेलिंग यू कि डोंट गो बाय ट्रांसक्रिप्ट्स, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता. उससे आपको आधे अधूरे क्वेश्चन आधे अधूरे तरीके से, नॉट इन द राइट वर्ड्स, नॉट इन द राइट सेंटेंसेज, यू गेट टू नो, और उसका आंसर तो लिखा नहीं होता. वो जो बनाता है ट्रांसक्रिप्ट वो जनरली लिख देता है मैंने इसका अच्छा जवाब दिया, या बोर्ड मेंबर सेटिस्फाइड थे, या गोल 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 कुछ लिख देता है, बट नॉट द एग्जैक्ट आंसर. So coming back to DAF, the first thing is anticipating of the question, and I started with the top. UPSC, यूनियन पे भी क्वेश्चन बनता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी क्वेश्चन बनता है, उसके नीचे धौलपुर हाउस आता है, धौलपुर पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसका नाम धौलपुर हाउस क्या है, या ये फलानी रोड पे सिचुएटेड है. आपसे ल्यूटन्स डेली के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मतलब आप एक एक शब्द जो डैफ में लिखा हुआ है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें एक एक शब्द पे भी क्वेश्चन बन सकता है. यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट. नॉर्मली यू विल बी टोल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड नेम, एंड विच इज़ राइट. और नाम पे क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है. उसकी वजह क्या है? द रीज़न फॉर दैट इज़ द मोमेंट द कैंडिडेट एंटर्स, नॉट ओनली हेयर, एनीवेयर, द मोमेंट द कैंडिडेट एंटर्स, द चेयरमैन of the panel, or rightly the president of the board, makes the candidate comfortable. And how does he make the candidate comfortable? Because he has the complete file, and the president of the board is the only person having complete file of the candidate. बाकी जो 4 एडवाइजर्स बैठे हैं उनको खाली abridged version of the DAF मिलता है, पूरा नहीं मिलता. बहुत कम लोगों को ये बात पता है जो मॉक इंटरव्यू लेते हैं कि पीछे वाले पेजेस नहीं मिलते हैं
जो लोग इंटरव्यू लेते हैं एडवाइज़र्स, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स प्लेस ऑफ बर्थ, मदर्स डोमिसाइल कहाँ का है, उनके एड्रेस कहाँ के हैं, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, और जाके हॉबीज़ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये डेफ में मेरे ख्याल से शुरू के 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं. It doesn't go beyond that to the other candidates. So when the candidate enters, the president of the board wants to make him comfortable. Oh, you are Mr. Kamal Pandey. Okay. So Mr. Kamal, tell me what is equivalent of Kamal in Hindi, in English. So candidate Lotus bola, acha, what are the implication of Kamal? What does it mean? अब वो बताएगा फ्लावर होता है, उसका क्या मतलब होता है, इस देवता से कनेक्टेड है या क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, वो सब क्वेश्चन होते हैं. इन सब क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने नाम का मतलब ही ना बता पाएँ, ऐसे भी लोग मिलते हैं जो अपने नाम का ही मतलब नहीं पता होता, तो वो दैट्स ए बैड रिफ्लेक्शन. बट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मेक द कैंडिडेट कंफर्टेबल. अब एनोनिम्स क्या हैं कमल के हिंदी में और इंग्लिश में, ओके, और you can take the discussion to any level provided you are smart as a candidate. आप इसको खुद को किस तरह से इसको इंटरव्यू को घुमाते हैं, that is the art which needs to be developed over a period of time. But I'm just starting with name as the first item. The second, which is very important, which is very very important, whether it is let's take date of birth. Okay, now date of birth आपकी 28 फरवरी की है. अब 28 फरवरी आपका इंटरव्यू मे बी लास्ट वीक ऑफ फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हो रहा. नाउ दिस विल बी डेफिनेटली नोटिस्ड. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 फरवरी, इंटरव्यू दिसंबर में हो रहा है, हो सकता है नोबडी में आस्क यू एनी क्वेश्चन, बट पीपल में आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज 28 फरवरी नोन फॉर. तो डू यू नो दैट इज़ फॉर टेक्नोलॉजी डे, और डू यू नो इट इज़ फॉर साइंस डे, और डू यू नो इट इज़ फॉर इंजीनियर्स डे. ये क्या उस दिन का महत्व है और क्यों है. और अगर आपका जन्म 28 फरवरी को हुआ तो हो सकता है लीप ईयर का क्वेश्चन उनके दिमाग में आ जाए और वो आपसे पूछने लगे लीप ईयर क्या होता है. तो आपको पता होना चाहिए लीप ईयर क्या होता है. 28 फरवरी इज़ वेरी क्लोज टू 29 फरवरी, इसलिए लीप ईयर का सवाल बन सकता है. तो उस डेट की क्या इंपॉर्टेंस है, उस डेट का क्या महत्व है, उस महीने का क्या महत्व है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं. अब हम आते हैं प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ डोमिसाइल, दोनों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. अब मान लीजिए कैंडिडेट वाराणसी में पैदा हुआ है, राइट. अब उससे टेल अस समथिंग अबाउट वाराणसी. अभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, टेल अस समथिंग अबाउट वाराणसी. अब वाराणसी को वो कैंडिडेट कैसे एक्सप्लेन करता है, ये तो शिव की नगरी है, एक इज़ वन वे ऑफ टॉकिंग अबाउट, अनदर इज सेइंग इट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट्स अनदर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट. फिर थोड़ा सा अगर आप डिफरेंट एंगल से लें तो आप बोलेंगे वरुणा और असी नदी के बीच में बसा है इसलिए इसको वाराणसी कहते हैं. एंड देन यू गो ऑन टू इट्स ऑल्सो कॉल्ड काशी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड बनारस, एंड देन यू आर टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन वाराणसी, काशी एंड बनारस. एंड दिस इज अनदर वे ऑफ पुटिंग इट. अनदर वे ऑफ पुटिंग इट इज वाराणसी इज़ ए कमिश्नरी, इट इज़ ए डिवीज़न. तो अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 12 डिवीज़न हैं और उसमें से वाराणसी एक डिवीज़न है, तो आप बोलेंगे इट इज़ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ वाराणसी, इट इज़ वन ऑफ द 10 डिवीजन्स कंप्राइजिंग ऑफ सो मेनी डिस्ट्रिक्ट. वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में इतने ब्लॉक्स हैं, इतनी तहसील हैं वगैरह वगैरह. सो दैट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ इट. So there is administrative side of it, there is economic side of it, there is demographic side of it, there is people side of it, there is the political side of it. Okay. There are universities, so there are 5 universities in Varanasi, which is a very important factor. If you miss on that, you're missing on something important. तो आपको जो पता है आप वाराणसी से हैं या वाराणसी में पैदा हुए, और अगर आपने वाराणसी की तैयारी नहीं की, to my mind that's a criminal negligence, right? और अगर आप वाराणसी से हैं या मेरठ से हैं या मुरादाबाद से हैं या बरेली से हैं, और अगर आपने उत्तर प्रदेश की बातें नहीं की, आपको उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी नहीं पता, अगर उत्तर प्रदेश का आपको बजट नहीं पता, उत्तर प्रदेश के डेफिसिट बजट नहीं पता, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं पता, या उत्तर प्रदेश में जो स्कीम्स चल रही हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वो नहीं पता, तो इसका मतलब आपने तैयारी पूरी नहीं की. बिकॉज यू आर फ्रॉम यूपी, यू गॉट टू नो
most about UP, you are from Varanasi, you got to know most about Varanasi, then your parents. अब बहुत केसेस में पता चला माता पिता में से एक बिहार के हैं, एक उत्तर प्रदेश के हैं. If that be so, you should be ready to prepare both, right? And you can be asked questions on culture, you can be asked questions on festivals, you can be asked questions on arts. तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत important area है, starting with name, date of birth, place of birth. To my mind is very important because place of birth of the candidate, place of birth or domicile of the mother, of the father, occupation. Now this is another interesting area. Many times I have taken interview where the candidate simply written business, which is not a very good way of writing in depth, but nevertheless, अब उसने business लिखा है तो आपके पास business ही पता है, तो obviously you ask the next question, what is the turnover of your father's business? Okay? पहली बात तो आपको टर्नओवर क्या होता है वो ही नहीं पता. दूसरी बात आप टर्नओवर बता नहीं पाते. दैट्स ए वेरी पुअर रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपके फादर जो बिजनेस करते हैं ऑलमोस्ट डेली लैंग्वेज में टर्नओवर वर्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में आता है. अब उसको सेल्स बोलते हैं या रेवेन्यू बोलते हैं या टर्नओवर बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, आपको इन चीज़ों की मोटी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. जो आपके घर में हो रहा है आपको वो भी नहीं पता, राइट? आपके फादर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपकी पार्टनरशिप है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, जॉइंट इन द फैमिली है, क्या है, आपको ये बेसिक चीज़ें उस बिज़नेस के बारे में भी पता होनी चाहिए. रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, मेन कस्टमर्स कौन से हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? सो खाली बिजनेस लिखा हुआ है उससे वो, अब वो लिखा हुआ टीचर, बहुत केसेस में दिस इज़ वेरी कॉमन, मदर फादर दोनों टीचर हैं, राइट? अगर मदर फादर दोनों टीचर हैं और अगर आपने एजुकेशन की स्टैटिस्टिक्स नहीं पकड़ी तो आप गलत कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन टू एंटिसिपेट क्वेश्चंस ऑन ए स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू एजुकेशन. अगर स्पेशली आपके पेरेंट्स प्राइमरी स्कूल में हैं या स्कूल में हैं तो स्कूल एजुकेशन के आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए. हायर एजुकेशन में है तो हायर एजुकेशन के फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए. बट इन एनी केस उन 5 लोगों में से एक ना एक आदमी आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे शर्तिया रूप से क्वेश्चन करेगा. अगर आपके मदर और फादर दोनों टीचर्स हैं, दोनों में से एक भी टीचर है, तो काफ़ी संभावनाएं हैं, या आपका टीचिंग से कोई कंसर्न है, या आप कोचिंग सेंटर से आ रहे हैं. दिस इज अनदर एरिया. नॉट मैनी कैंडिडेट्स दीज डेज आर कमिंग फ्रॉम कोचिंग सेंटर. नाउ मैनी टाइम्स वी आस्क दिस क्वेश्चन. कोचिंग इंडस्ट्री का हम रेवेन्यू पूछते हैं, हम इंडस्ट्री की स्टैटिस्टिक्स पूछते हैं, हम इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल पूछते हैं. तो ये सवाल जो हैं नेचुरल हैं, क्योंकि ये आपके बैकग्राउंड से ये चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. सो यू शुड बी एबल टू एंटिसिपेट क्वेश्चंस. आई हैव नॉट येट गॉन टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक मैं नहीं पहुँचा हूँ, उससे पहले के ही मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस बताए. नाउ कमिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. मेरे साथ एक सज्जन हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, वो बहुत अच्छे इंटरव्यू लेते हैं. वो हमेशा कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल का अंतर पूछते हैं. बहुत सारे कैंडिडेट्स के 10th और 12th के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें स्कूल का नाम पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल या इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है. वो हमेशा पूछते हैं कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल में क्या अंतर है, वगैरह वगैरह. एंड दैट टेक्स यू टू चर्च एंड दैट टेक्स यू टू क्रिश्चियनिटी. ऑटोमेटिकली सवाल और जवाब उस दिशा में बढ़ते चले जाते हैं. बट वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस विच यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड, आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी इंस्टीट्यूशन के एलुमनाई कौन है, राइट? अब वो लड़की आती है, उसका इंटरव्यू हो रहा है, लेडी श्री राम की पढ़ी हुई है. अब आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, टेल अस द नेम ऑफ 5 वेल नोन एलुमनाई ऑफ LSR. नाउ दिस गर्ल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से माइंड सेट पता चलता है आप किन 5 पर्सनैलिटीज़ का नाम ले रहे हैं और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए या समाज के लिए. तो आप मॉडल्स का नाम ले रहे हैं, या पॉलिटिशियंस का नाम ले रहे हैं, या आप बहुत बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर्स का नाम ले रहे हैं, या एजुकेशनिस्ट का नाम ले रहे हैं, और उसके बाद के क्वेश्चन वहाँ से फॉलो अप होके निकलेंगे. इसलिए एलुमनाई का क्वेश्चन जैसे है, ये तो आपको 100% तैयार करना ही होगा. वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन इज, आप जिस इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, आप मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, सो माई क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कॉलेजेस आर एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी?
how many programs are running in PG in Delhi University? So this is a question I ask very often. Okay, which are the new programs introduced in your university in the last 2 years? Who is the Vice Chancellor of your university? When was your university established? What is the difference between a central university and a state university? What is the difference? What is a deemed university? What is there difference between deemed university and deemed to be university? Okay, अब ये सब education वाले column से ये questions निकले. Now these questions could relate to current affairs, they could relate to general knowledge, they could relate to education, but they have popped up from your, DAF. और DAF में से क्वेश्चन निकलते हैं. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है पिछले कई साल का कि टेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली IITs के जो आते हैं, very often I ask them question relating to artificial intelligence or quantum computing and those kind of questions, and almost always they are zero. Almost always they are zero because their all attention time is devoted towards sociology, anthropology and political science and जो चीज़ें उन्होंने नहीं पढ़ी होती उनकी तरफ पूरा ध्यान होता है और टेक्नोलॉजी वो बिल्कुल भूल चुके होते हैं. Now this is a very common observation which I have noted in the last 20 years. So I would like to caution people on emerging trends. That's another area where they must prepare. For example, find out 10 mega trends. आपको आराम से मिल जाएंगे इंटरनेट से. फिर आपके वो जो मेगा ट्रेंड्स हैं अलग अलग एरियाज़ में, टेक्नोलॉजी के अलग निकालिए, पॉलिटिक्स के अलग निकालिए, डेमोग्राफी के अलग निकालिए, सब चीज़ों के अलग निकालिए. उससे आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है. तो तैयारी करने में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको तैयार करनी होती है, दैट यू शुड बी डेवलपिंग एन इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव. Now, what does it mean? What does it mean independent perspective? Let me give you an example of national education policy. अब आप किसी भी मीडिया रिपोर्ट में, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, आपको वही घिसी पिटी चीज़ें मिलेंगी आपको कि ये जो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी, इंटरडिसिप्लिनैरिटी, ये 4-5-6 बातें आपको मिलेंगी. बट इफ़ यू हैव एक्चुअली रेड द पॉलिसी, एंड नाउ दिस इज़ वेयर द डिफरेंस लाइज. अगर मेरे मदर फादर दोनों टीचर हैं, आई मस्ट रीड NEP डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल विच इज़ 65 पेज डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पॉलिसी को मुझे पढ़ना चाहिए. उस पॉलिसी में भी अगर मेरे माता पिता यूनिवर्सिटी के हैं तो करीब 40% हायर एजुकेशन है और बाकी स्कूल एजुकेशन है. अगर मैं खाली हायर एजुकेशन पढ़ूंगा और स्कूल एजुकेशन छोड़ दूंगा तो भी मेरा पर्सपेक्टिव नहीं बनेगा. लेट मी गिव यू एग्जांपल इन NEP. अब अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूं और मेरे से पूछा जाए, और जो मैं पूछता भी हूं अक्सर, व्हाट इज़ एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ NEP? ओके, and almost always I get that response of what I told you, multidisciplinarity, interdisciplinarity, multiple entry exit वगैरह वगैरह. वही जो स्टैंडर्ड 4-5-6-7 बुलेट पॉइंट घिसे पिटे वही कैंडिडेट ने हर जगह पढ़े. लेकिन इफ़ आई वर टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई वुड से टीचर्स ट्रेनिंग इज़ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस पॉलिसी. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम, हाउ डू यू से दैट? देन माई आंसर विल बी, सर इन स्कूल दिस इज गिवन इन चैप्टर 4. They are talking about teachers training, and in higher education they are talking about starting a new B.Ed program where the teacher who has to go as TGT physics will 2 years he will study in physics department in the university and 2 years in the education department. So that's a very very perfect answer which a candidate who has not read the policy will never ever be able to answer this question. लेकिन तैयारी की अगर बात करें और मेरे को इसमें फर्दर तैयारी करनी है NEP में, तो व्हाट आई विल लाइक टू डू और व्हाट आई शुड डू इज आई शुड गो बैक टू Dr. K. Kasturirangan's draft report which is 484 pages which was submitted, जिसका कर्ल्ड वर्जन, अब्रिज्ड वर्जन 65 पेज का NEP बना. तो मैं जब कस्तूरी रंगन के 484 पेज पढ़ूंगा और उससे जो मेरे ज्ञान चक्षु खुलेंगे और उससे जो मेरा पर्सपेक्टिव बनेगा, दैट विल बी अमेजिंग. So likewise, I told you one answer I could have given is that teachers training is an outstanding feature of this policy. Another I could say, sir, one of the outstanding features of NEP is the continuum word used. Obviously, next question will be, what do you mean by continuum word?
तो उसमें आप कहेंगे कि ये नर्सरी से लेके PhD तक कॉन्टिन्यूटी इसमें एस्टेब्लिश की गई है, दैट इज़ वन. सेकेंड इज old policies have not been discarded, that has also been continued. So this policy is an extension of old policy with lots of improvisations, and the word continuum has been used by the chairman of NEP, Dr. K. Kasturirangan. That will be a perfect answer. So again I'm telling you, जब आप आंसर देते हैं, आंसर इम्पॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन वहाँ तक इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ तक आपको क्वेश्चन समझने की क्षमता हो. In other than UPSC, I always find in all interviews which I have been taking for last 45 years, people don't listen to the question completely and they start answering. Fortunately, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, and this is partly because of the mock interviews. तो यहाँ mock interview में कैंडिडेट्स की काफ़ी रिहर्सल हो जाती है और वो ऐसा काम नहीं करते, वो चुपचाप क्वेश्चन सुनते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं. सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, बट नेवरदलेस you should be able to be attentive to listen to the question very carefully, because each word of the question is very important. I'll narrate one of my very interesting incident in this regard. बहुत साल पहले पंतनगर यूनिवर्सिटी में हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे और डॉक्टर मंगला राय was the vice chancellor, and Dr. Mangla Rai is a very famous agriculture scientist, and he did 2 terms as Director General of Indian Council of Agriculture Research, which is a position equivalent to Secretary Government of India. And I remember the Chief Minister of Uttarakhand उनको बहुत रिक्वेस्ट करके लेके आए, वाइस चांसलर बनाया पंतनगर यूनिवर्सिटी का, उन्होंने लॉज भी चेंज किए उनको एडजस्ट करने के लिए, और he was doing pretty well, and I think he was hardly 4-5 months old in the university, and he had turned around the university. यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स थे. एक कैंडिडेट आई, लेडी, एंड शी मस्ट बी अबाउट 33-34 years old, और वो साड़ी में थी, और वो मैडम जब अंदर घुसी तो शी वॉज वेरी प्लेजेंट, वेरी नाइसली ड्रेस्ड. शी सैट डाउन, और मंगला राय साहब के एक तरफ मैं बैठा हुआ था, दूसरी तरफ प्रोफेसर कवि दयाल थे जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के HOD मैनेजमेंट थे, और उन्होंने उस लेडी को कहा टेल अस समथिंग. उन्होंने जस्ट कहा टेल अस समथिंग. उन्होंने ये नहीं कहा टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ना थोड़ा सा मैं चौंका, क्योंकि मैं भी इतने साल से इंटरव्यू ले रहा था, मैंने आज तक ऐसी सिचुएशन नहीं सुनी जहाँ पर चेयरमैन साहब बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा है मेंबर, टेल अस समथिंग. इट वाज नॉट टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. द लेडी वाज शार्प, शी गॉट इट. बहुत बड़ी बात है, उस लेडी ने पकड़ लिया. तो उसने कहा शुड आई टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ. काउंटर क्वेश्चन किया, UPSC में नहीं करते, वहाँ किया. तब इन्होंने मंगला राय साहब ने हिंदी में कहा हाँ हाँ कुछ कहिए. Then also he did not say कि अपने बारे में कहिए. And then that lady describing about herself. So after the interview was over, of course interview was good, that's a different part. I was thinking that was a great opportunity to the lady, because this was a open-ended loose question where if this lady had heard the question which she heard correctly, but she did not capitalize on the question. तो जब आप क्वेश्चन सुनते हो और आपके मतलब का होता है, तो आप उसको किस दिशा में ले जाते हो और कितना यूज़ करते हो, वो अपॉर्चुनिटी उस लेडी ने मिस कर दी. तो मैंने सोचा अगर वो लेडी ये कहती कि सर आपने पिछले 3 महीने में या 4 महीने में यूनिवर्सिटी को टर्न अराउंड कर दिया, और आपकी अगले 1-2 साल की क्या विज़न है इस यूनिवर्सिटी के बारे में. So obviously the chairman of the committee, selection committee, the vice chancellor would have been very pleased to hear this coming from a candidate, that she is aware that he has turned around, and also she wants to know the future of the university. ऐसे ही जैसे लोग इंटरव्यू में अक्सर गलती करते हैं, मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरी ट्रांसफ़र कब होगी वगैरह, कैरियर ग्रोथ क्या है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कंपनी का कैरियर ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ क्या है. तो यू नो दैट्स जस्ट ए diversion in between in what I am wanting to tell you. So going back to DAF, I had started with UPSC, then I went to automation in UPSC, then I went to name, then I went to date of birth, then I went to address, then I went to parents, occupation, jobs including business, then I went to educational qualification. और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने एलुमनाई की बात की, कोर्सेज़ की बात हो सकती है, टेक्नोलॉजी की बात हो सकती है, अब हो सकता है उसमें किसी ने फिज़िक्स किया हो. और क्वाइट ऑफन अर्लियर इट यूज़ टू हैपन कि जो लोग इंटरव्यू लिया करते थे उसमें बहुत लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हुआ करते थे,
मैं बात कर रहा हूँ कुछ साल पहले की, और मैनी ऑफ देम वर ग्रेजुएट्स इन फिज़िक्स, सो फिज़िक्स के वो बेसिक क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते थे। तो आपका एरिया क्या है पढ़ाई का भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट भी पूछी जा सकती हैं। आपने मान लीजिए पीएचडी की है तो आपका पीएचडी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके पब्लिकेशंस कहाँ हैं, पब्लिकेशंस की क्वालिटी क्या है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ विच यूज टू बी वेरी गुड लाइक पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, दे आर नो मोर दैट गुड, उसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। देश की एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने आपसे पहले ही बात किया, वो सवाल पूछे जा सकते हैं। So talking about that example of Pantnagar interview was basically to draw the attention of the candidates. The candidate in the interview has to be very attentive in terms of listening to the question. That's the first and the foremost, a very important quality the candidate should have, number one. Number two, the answers to the question. One has to be very careful because factual questions जो होते हैं उनके आंसर्स बहुत शॉर्ट और स्ट्रेट होते हैं, और अगर आपको नहीं आता तो यू शुड readily acknowledge that you do not know. Okay? And if the question is such that you ought to have known, then you should also apologize by saying, I need to learn about it. Not only saying, I'm sorry, I do not know the answer, but you should also add to that, that I need to learn about this. So, जो factual question नहीं होते, वहाँ थोड़ी समझदारी की ज़रूरत होती है, और वी विल कम टू दैट, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेक यू दैट टू डैफ का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। हमने डैफ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़े थे। जो अगला इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है अदर एक्टिविटीज़ का, करिकुलर एक्टिविटीज़ का, और मैं सबको एक साथ ही लूँगा, हॉबीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, सब चीज़ों को एक साथ लूँगा। और यहाँ अक्सर क्वेश्चन ये होता है, स्पेशली जब लोग डैफ भरते हैं, कि सर मेरी तो 15-20 एक्टिविटीज़ हैं, मैं 15-20 एक्टिविटीज़ भर दूँ, या कोई कहता है मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं भरूँ कि नहीं भरूँ। तो इन एनी केस आप लोगों के केस में तो यू हैव ऑलरेडी फिल्ड, सो देयर इज़ नॉट मच रीज़न टू डिस्कस, बट जनरली द प्रिंसिपल इज़ वॉट एवर यू राइट विल अट्रैक्ट ए क्वेश्चन, सो यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट। आप 3 लिखें और 3 की आपकी बहुत तैयारी है तो 3 ही लिखें, जबकि आप 6, 7, 8, 10 एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते होंगे, लेकिन आप 3 ही लिखें, बिकॉज दोज 3 क्वेश्चंस यू आर सो वेरी वेल प्रिपेयर्ड। एंड इफ इट इज़ द नंबर इज़ लेस लाइक 3 or 4, 2, 3, 4, द चांसेस आर कि जो इंटरव्यूअर है उसका फोकस वो 2, 3, 4 पे आसानी से बनेगा। लेकिन अगर वो 1-2 पैराग्राफ में रनिंग आपने भरा हुआ है तो चांसेस ये हैं कि कोई भी एट रैंडम कोई भी चीज़, कोई भी बोर्ड मेंबर आपसे पूछ लेगा, एंड यू मे नॉट बी दैट गुड इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट जिस पे पूछ लिया गया है। तो मेरा मानना यह है कि नॉर्मली 3, 4, 5 से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। ऐसे ही अवार्ड्स, ऑनर्स में बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, तो वहाँ क्लियरली लिखा होता है स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का हो तो मेंशन करिए, नहीं तो मत करिए। ऐसे ही लोग क्वेश्चन पूछते हैं, स्कूल में मैं कैप्टन था हॉकी का टीम में, मुझे भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट टेकन वेरी सीरियसली बाय द इंटरव्यूअर्स, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने लिखा है क्वेश्चन उसी में से बनेगा, तो आपको वही लिखना चाहिए जिसको आप हैंडल कर सकते हैं। ये 2 प्रिंसिपल अगर आप दिमाग में रखें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप अपनी हॉबीज़ को अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, इफ़ यू आर IAS ऑफिसर, हाउ विल यू डू द स्ट्रेस बस्टिंग फॉर योर सेल्फ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि दिस इज फैक्ट, स्ट्रेसफुल जॉब तो है। अब आपने अपने हॉबीज़ में लिखा था आपको पेट्स का शौक़ है, आप कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, जो भी पालते हैं, एंड देन यू से द मोमेंट आई रीच होम ऑल माई स्ट्रेस इज गॉन द मोमेंट द डॉग कम्स एंड वैक्स द टेल इन फ्रंट ऑफ मी। नाउ अब आपने सीधा स्ट्रेस बस्टिंग को अपनी हॉबी से कनेक्ट किया। अगला सवाल कुत्ते के ऊपर आएगा, कुत्ते की कौन सी ब्रीड है, कुत्ता कितने टाइम से आपके पास है, कुत्ता कहाँ से लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। सो
you know, the direction of the interview will change. And this is a very important quality which if the candidate develops, which takes time, I'm sure एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप जवाब देते टाइम उसको जवाब को ऐसे घुमाते हैं कि आपका अगला सवाल आपकी मर्ज़ी का बने, दैट इज़ द सक्सेस, ट्रू सक्सेस ऑफ एनी इंटरव्यू। सो मैंने एक उदाहरण दिया, बात हो रही है स्ट्रेस बस्टिंग की, आप ले गए कुत्ते के ऊपर, कुत्ते की ब्रीड्स पे बातचीत शुरू हो गई, आपकी हॉबी के ऊपर चला गया, तो वो जो सवाल जो बहुत स्ट्रेसफुल था, मैं तो कहूँगा स्ट्रेस वाला क्वेश्चन स्ट्रेसफुल ही है, उससे आप उसको बहुत हल्के में ले गए और आपने अपनी वो दुविधा दूर कर दी। दूसरी बात है, ये वाली जो हॉबीज़ हैं ये लिखते टाइम या फॉर्म भरते टाइम अनफॉर्चुनेटली बहुत कैजुअल तरीके से लिया जाता है, जबकि इसको सीरियस तरीके से लेना चाहिए। लेट मी गिव यू एग्जांपल। लोग लिख देते हैं रीडिंग, अरे भाई रीडिंग इज क्या, रीडिंग का मतलब क्या, पढ़े लिखे हो रीडिंग तो आप करोगे ही ना, तो व्हाट्स द बिग डील इन रीडिंग। फिक्शन पढ़ते हो, नॉन फिक्शन पढ़ते हो, फिक्शन पढ़ते हो किस प्रकार का फिक्शन पढ़ते हो, नॉन फिक्शन पढ़ते हो किस प्रकार का पढ़ते हो। और रीडिंग टाइप की हॉबी मेरे जैसा आदमी तो कभी भी नहीं अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि वहाँ जितने लोग पढ़े बैठे हुए हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, और उनमें से किसी न किसी ने उस एरिया में ज़रूर पढ़ा होगा जिस एरिया में आपने पढ़ा है, और उसकी नॉलेज आपसे बहुत ज़्यादा होगी, तो मतलब यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल। तो फॉर ए पर्सन लाइक मी, इफ़ आई हैव टू एडवाइस समबडी, आई विल नेवर एवर एडवाइस टू राइट द वर्ड्स रीडिंग एज ए हॉबी। देन कम्स ट्रैवल। ट्रैवल है या टूरिज्म है, दोनों में अंतर है। अब आप टूरिज्म करते हो तो कैसे करते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो। ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल में और टूरिज्म में अंतर क्या है, और ट्रैवल कहाँ करते हो और क्यों करते हो। सो प्लीज़ रिड्यूस इट टू ए फोकस्ड एरिया so that the answers to the questions which you have to give are limited in their own scope उसका आप कम करिए, और वो आपकी पर्सनैलिटी से रेलिवेंट होना चाहिए। तो अब अगर आपसे पूछा गया why do you travel, why do you like traveling, why is traveling your hobby, now if you connect with it that because every time I go to a new place I like to spend more time with people there because I want to understand their culture, I want to know how they talk, how do they behave, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उससे पता चलता है आपका पर्सपेक्टिव बहुत वाइड है। तो आपने नंबर स्कोर कर लिए अननोइंगली, लिखा तो आपने ट्रैवल था, लेकिन मार्क्स आपने स्कोर कर लिए ये कह के कि मैं जब भी नई जगह पे जाता हूँ मेरा फोकस पहाड़ देखना, नदियाँ देखना और ये सब प्राकृतिक छटा देखना नहीं है, मेरा फोकस लोगों से मिलना है। अब जहाँ आपने कहा मेरा फोकस लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करके उनको समझना है, उनका बैकग्राउंड समझना है, कल्चर समझना है, आर्ट समझना है, वहीं पर आपके नंबर बहुत बढ़ गए, आपको पता भी नहीं आपके नंबर बढ़ गए। सो दीज आर वेरी स्मॉल ट्रिक्स। If you had filled up your DAP properly, if you have handled your questions intelligently, if you have connected the answers to your questions with the personality which is required for an IAS officer, I think you have done a great job. So I'll close DAF at this point of time, anticipating questions relating to DAF. Now we come to second area, that is anticipating questions relating to current affairs, and I'll add general knowledge also with that. When we say current affairs, geopolitics, अब ट्रम्प साहब जो है रोज़ नई अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब हो सकता है जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, और लेट मी शेयर विद यू, जो एडवाइजर्स आते हैं वहाँ एक एडवाइजर्स रूम होता है यूपीएससी की बिल्डिंग में, एक्चुअली 2 रूम्स होते हैं। तो वो एडवाइज़र उन 2 में से किसी एक रूम में बैठते हैं, और वहाँ खूब सारे अखबार, मैगजीन्स, दुनिया भर की चीज़ें पड़ी होती हैं, और जब तक इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होता 10 बजे, कोई 9:15 आ जाता है, कोई 9:30 आ जाता है, कोई 9:45 आ जाता है, वो सब वहाँ बैठ के अखबार और मैगजीन्स और ये सब छानते रहते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो एक तो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर आपको हर हालत में पढ़ लेना चाहिए, कम वॉट में, ओके। चाहे आप अपने सेल फोन से पढ़ें, चाहे आप उसको डिजिटल मोड में पढ़ें, चाहे आप एनालॉग में प्रिंट मीडिया में पढ़ें, लेकिन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और उसमें भी हेडलाइंस की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल ऑफ अस नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट। तो आपको क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के हैं वो न्यूज़पेपर उस दिन का बहुत रेलेवेंट है। 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में अगर कोई ग्लोबल इवेंट होने वाला, सार्क है, कुछ भी है, कहीं पर भी है दुनिया में, उससे संबंधित सवाल शर्तिया बनेंगे।
जियोपॉलिटिक्स जो आजकल चल रहा है उस पर डेफिनेटली सवाल बनेंगे। ना ये सब मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको थोड़े से डायमेंशन बता रहा हूँ, लेकिन जनरल नॉलेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनाई, ये जो बिग टेक कंपनीज़ हैं, एनवीडिया, ये आ रही हैं, इसका क्या होगा? एलन मस्क अगर यहाँ पर स्टारलिंक ले आया, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? डेटा पॉलिसी क्या है, राइट? तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो चीज़ जहाँ से शुरुआत हो रही है, इट में स्टार्ट विद टेक्नोलॉजी, इट में लैंड अप इन करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में टेक यू टू जनरल नॉलेज। इन टर्म्स ऑफ जनरल नॉलेज कुछ ऑल्सो भी आपसे स्वच्छता अभियान के बारे में बात हो रही है। अब स्वच्छता अभियान करते करते जो है आपका बजट आ गया कि स्वच्छता अभियान का इस साल बजट कितना था, जब ये स्कीम आई तब बजट कितना था। हाउ डू यू, अब यहाँ ओपिनियटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं विच वी हैव नॉट टच्ड टिल नाउ। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट स्वच्छता अभियान मिशन को ही अभियान बोलते हैं, स्वच्छता अभियान के बारे में आपके क्या विचार? एंड वेरी ऑफन आई हैव नोटिस्ड इन मॉक इंटरव्यू द कैंडिडेट डायरेक्टली स्टार्ट्स प्रेजिंग द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. That is not the right way of doing it, okay? Because एक मैंने ये भी नोट किया, हर कैंडिडेट आके ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल फलाने मंत्री, ऑनरेबल दिस, ऑनरेबल दैट. माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट येट एन IAS ऑफिसर, so use the word like Mr. Use the word properly. You are not subservient to either speaker or to minister as of today. Tomorrow if you are an IAS officer and if you are reporting, obviously you are expected to say honorable, not here in this interview. So एक गलती ये करते हैं. दूसरा, सीधा सरकार की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, which is a wrong way. They think they will score more marks. इसका एक तरीका होता है, और तरीका वही होता है जो मैंने आपको शुरू में कहा था. One is integrity and second is आपका जो neutrality. You are not working for X party or Y party or Z party. You are working for the country, you are working for the constitution, you are working for the sovereign. So आपसे जब सवाल पूछा गया, आप स्कीम के बारे में बताइए ब्रीफली, स्कीम के सब अच्छे पहलुओं के बारे में बताइए. Then you talk about difficulties and challenges in that scheme. That is expected of you. And then give a balanced view. इसमें ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, यहाँ तक ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा होने की संभावना है और इसको अच्छा किया जा सकता है, यहाँ तक सही चलेगा. और बहुत बार कैंडिडेट हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन में अगर हमको फिर से पूछा जाए, बट व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस, और हमें कॉर्नर किया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है, हमसे बार बार पूछा जा रहा है एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहाँ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ हो सकते हैं और हमारा व्यू सरकार से अलग है, तो हम क्या करें? आई रिपीट, you will start like the way I describe the issue, analyze the issue, pros and cons, give both sides of the story, plus and minus, and finally if you are forced into the situation, आपको दूसरी तीसरी बार फिर से कहा जा रहा है कि अपने विचार बताइए, then you simply use one sentence, I will go by the policy of the government of India. Close. इसके बाद डिस्कशन खत्म हो जाता है, उसके बाद अगला सवाल नहीं बनता. तो यू शुड नो हाउ टू रिगल आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाते हैं उन लोगों को बेचारों को नहीं पता होता. तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दे शुड लर्न दिस आर्ट टू हैंडल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के बहुत. मुझे याद है मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, बॉटनी का स्टूडेंट आ गया, अब मैं तो बॉटनी पढ़ी नहीं, अब मेरे को उससे सवाल पूछना है, गमला पड़ा हुआ है यूपीएससी के मेंबर में जहाँ रूम में जहाँ हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आई विल आस्क व्हाट इज़ दिस प्लांट अबाउट. तो अगर वो जवाब दे देता है तो अच्छा लगता है, अगर जवाब नहीं देता है एनीवे वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स नॉट ए बिग डील, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अब ये सिचुएशनल क्वेश्चन है. कुछ नहीं है तो गमले में जो पौधा लगा है उसके बारे में पूछ लिया. अनदर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन यूज्ड टू बी, ये जो कैंडिडेट होता है जब आता है तो सेमी सर्कुलर सिटिंग होती है, दो एडवाइज़र्स दो तरफ बैठे होते हैं और प्रेसिडेंट साहब इधर होते हैं, वो दरवाज़ा उधर होता है, कैंडिडेट वहाँ से एंटर करता है, कैंडिडेट वहाँ बैठता है. तो ये दो एडवाइज़र इस तरफ होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड इधर होता है, टॉयलेट इधर कहीं होता है, पीछे खिड़की होती है, इधर साइड में खिड़की होती है और उधर से कैंडिडेट आके बैठ जाता है.
तो ऐसी स्थिति में मेरा एक क्वेश्चन हुआ करता था, इफ़ यू वर द ऑक्यूपेंट ऑफ दिस रूम, दैट इज़ इफ़ यू वर प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड और इफ़ यू वर यूपीएससी मेंबर, आपका एक कमरा था, तो सबसे पहले मैं उसको बोलता हूँ खड़े हो जाइए। तो पहले तो सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि नोबडी एक्सपेक्ट कि आप ऐसे बिहेव करेंगे। तो मेरे साथ के मेंबर्स ही चौंक जाते थे, तो फिर मैं कहता था खड़े हो जाइए। खड़ा हो जाता था, कैंडिडेट इंटरव्यू देने आया, मैंने कहा टेक ए 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस रूम। देखा अगेन टेक ए 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस रूम, फिर से देखा। नाउ प्लीज सिट डाउन, नाउ लिसन टू माई क्वेश्चन। इफ यू वर द ऑक्यूपेंट ऑफ दिस रूम, हाउ विल यू रीऑर्गेनाइज दिस रूम? दैट्स माई क्वेश्चन टू यू। प्लीज स्टैंड अप अगेन, फिर से एक बार व्यू लीजिए, फिर बैठ जाइए। नाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू। इफ यू वर द ऑक्यूपेंट ऑफ दिस रूम, हाउ विल यू रीऑर्गेनाइज दिस रूम? एंड आई ऑलवेज गॉट वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसको सिर्फ तारें लटकती हुई दिख रही हैं, पुरानी बिल्डिंग है, पुराने कमरे हैं, तारें लटक रही हैं उस पर। सिविल इंजीनियर है, वो टूटी हुई टाइल्स देख रहा, किसी और को जो है फर्नीचर दिख रहा, किसी को वास्तु के हिसाब से पीछे खिड़की दिख रही है, सबका अलग अलग वो है। सो दिस क्वेश्चन व्हेन आई आस्क्ड एंड व्हेन आई हैव रिपीटेड 3 times, टेक ए 360 डिग्री व्यू ऑफ द रूम, हाउ इंटेलिजेंटली यू थिंक, हाउ डू यू प्रेजेंट yourself? So what I am telling here is these are situational contextual questions which one should be ready to answer. And another very standard question, very often, if you are the district magistrate, जो आपका place of birth था वाराणसी, if you are a district magistrate of Varanasi and about 500 yards from your office there are riots और वहाँ आग लग गई, आप क्या करें? अब वो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो कैंडिडेट बताते हैं, दे ऑलमोस्ट ऑलवेज गो टू द सॉल्यूशन, लाइक फायर ब्रिगेड बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे वगैरह। तो मेरे साथ एक जो बहुत सीनियर IAS ऑफिसर चेयरमैन होते हैं हमारे साथ मॉक में, तो उन्होंने जो समझाया, मैं आई एम जस्ट शेयरिंग हियर, what he said is, that's not your job. You will call the SSP and tell him to give report in 10 minutes about what is happening, and then you will take the decision. भाई पहले रिपोर्ट तो लो, तुम DM हो तो, ये थोड़ा ना तुम्हारा काम है आग बुझवाने का। So again, look at the perspective. So this gentleman with whom I learned this, he is a very senior IAS officer of 1966 batch. एंड दिस इज व्हाट ही टेल्स कैंडिडेट कि आपको जवाब ऐसे देना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप फायर ब्रिगेड बुलाओ के आग बुझवा दें। सो दैट टेस्ट योर पर्सपेक्टिव कि यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर, यू आर DM। तो DM हो तो आपका टीम है, आपके पास अथॉरिटी है, आपको पता होना चाहिए किससे क्या बात करनी, कैसे सॉल्यूशन निकालना, राइट? सो दिस इज अनदर डायमेंशन। सो अगेन गोइंग बैक, डेफ के बाद मैंने आपको कुछ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड बातें बताई। इसके बाद सिचुएशनल कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, और these are the kind of questions you should be able to anticipate beforehand. But what do you do with that? Anticipate तो कर लिया, now we come to the preparation stage. आपको मैं सजेस्ट करता हूँ 4 या 5 रजिस्टर्स बनाइए फिजिकल, एक पेज पर आप एक क्वेश्चन लिखिए। जैसे डेफ का एक रजिस्टर बनेगा आपका, पहले पेज पे ही आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, नाम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? अब मैंने पहला उदाहरण दिया था कमल पांडे का, कमल का मैंने आपको एग्जांपल दिया पांडे के ऊपर। यू डोंट राइट PANDEY, you write only PA and D. What is the difference between adding Y and not adding Y? Tell us, Mr. Kamal Pandey, what is your understanding? अब ये क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन। ओके, नाउ इफ यू आर रियली नॉलेजेबल यू वुड से पहाड़ में, उत्तराखंड में या पहाड़ में PANDE होता है, जबकि प्लेन्स में ईस्टर्न यूपी में और बिहार में PANDEY होता है हिस्टोरिकली। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है ऐसा क्यों होता है? नाउ यू शुड बी एबल टू से दैट जो महाराष्ट्रियन शिवाजी की टुकड़ी में आए थे, उत्तराखंड में छूट गए और रह गए, उन्होंने पांडे, तिवारी और जोशी, ये सरनेम्स ये ओरिजिनली मराठियों से आए हैं, महाराष्ट्रियन से आए हैं। तो यू टेकिंग इट टू द हिस्ट्री, बट अगेन द पॉइंट इज यू
have prepared the answer to the word पांडे. पांडे के आपने सारे क्वेश्चन बनाए, पांडे के आपने सारे आंसर बनाए. तो वो जो रजिस्टर जिसमें मैंने कहा पर पेज आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसके आप आंसर लिखेंगे और उसको वहीं छोड़ के उसको अब आप कंप्यूटर पे ले जाइए, डेस्कटॉप लैपटॉप जिस पे भी आप यूज़ करते हैं. एंड प्लीज़ कॉन्टिन्यूसली रीविजिट योर आंसर टिल द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव इट. बिकॉज छोटा जवाब देना है कि लंबा देना है, ये आप सोचिए. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग हाउ टू गिव इंटरव्यू. कुछ सवाल हैं जिनके जवाब छोटे ही होने चाहिए और छोटे ही होते हैं, वो अगर आप लंबे देंगे तो आप यू आर लूजिंग मार्क्स. कुछ सवाल जिनके आंसर लंबे होने चाहिए और आप बहुत छोटे दे रहे हैं, अगेन यू आर लूजिंग मार्क्स. तो लेंथ ऑफ द आंसर, द सेंटेंसेस, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर देने की नॉलेज के बारे में. यू शुड ऑलवेज नो कि पहला सेंटेंस क्या होगा और आखिरी सेंटेंस क्या होगा. नाउ प्लीज़ रिमेंबर, जब कोई कैंडिडेट से कोई सवाल पूछा जाता है तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, नॉट ओनली यूपीएससी, एनीवेयर फॉर दैट मैटर, दे ऑलवेज लिसन टू द फर्स्ट सेंटेंस, बिकॉज वो वहीं से जज कर लेते हैं इसको पता है कि नहीं पता. उसके बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो अपनी सोच में, हो सकता है अगला क्वेश्चन उनको पूछना हो, उसमें चले जाते हैं, या वो लास्ट सेंटेंस को देखते हैं क्योंकि अगेन अगला क्वेश्चन उसमें से बनेगा. तो आपको पैकेजिंग अपने आंसर की कैसे करनी है, आपको पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस बहुत केयरफुली चुनना है. तो जब आप कंप्यूटर पे ये आंसर बार बार रिविजिट कर रहे हैं, आप उसकी लेंथ, वर्ड्स, उसके शब्द, उसका मतलब, उसका साइज, उसका सीक्वेंस, ये सब आप कॉन्टीन्यूसली रिवाइज कर रहे हैं. उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाए, ये बहुत बढ़िया है, तब उसको आप रजिस्टर में ले जाके फाइनली लिखिए और फिर आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो आत्मसात हो जाएगा. इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू योर सिस्टम. दैट्स द एडवांटेज ऑफ राइटिंग बाय हैंड. व्हेन यू राइट बाय कंप्यूटर इट डज नॉट गेट इंटरनलाइज्ड, but when you write in hand it gets internalized. So start with the question on the register, one register for DAF, one register for current affairs and general knowledge, or maybe 2 registers if you like, another register for your situational, contextual, उस टाइप के क्वेश्चन. इस तरह से आप 3-4 ऑप्शनल के बारे में बताना भूल गया. आपका जो ऑप्शनल एरिया है उससे भी आप क्वेश्चन एंटिसिपेट करिए, उसका अलग रजिस्टर बनाइए, उसके आप जवाब बनाइए और इस तरह से आप रजिस्टर बनाना सीखिए, which is the most important part of तैयारी. That is one. Second is sources, as I told earlier, NEP का उदाहरण दिया, always go to original source, and this is the single most important part of my talk here. If you learn from the original source, आपका perspective बनेगा, आपकी knowledge proper बनेगी. The disadvantage of original source could be कि टाइम आपको ज़्यादा लगेगा. तो मैंने जैसा कहा, अगर माता पिता दोनों ही टीचर्स हैं तब तो NEP आप ओरिजिनल पढ़िए. माता पिता में से एक है तो भी आप NEP पढ़ लिए, कस्तूरी रंगन की 484 पेज की रिपोर्ट छोड़ दीजिए. लेकिन अगर वो दोनों नहीं हैं और अगर आप MBBS किया हुआ है तो हेल्थ पॉलिसी पढ़िए. लाइक फॉर एग्जांपल, माय फेवरेट क्वेश्चन यूज्ड टू बी, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ द हेल्थ पॉलिसी. ओके, अब ये मेरा क्वेश्चन है. अब मज़ेदार बात ये, हेल्थ पॉलिसी की कोई कमेटी नहीं बनी. अब अगर आपने झूठ बोला तो वो जो मैंने पहला पॉइंट बोला था इंटेग्रिटी का, यहीं आप पकड़ेंगे. राइट, कमेटी कभी बनी नहीं. अगर आपने आंसर शुरू किया, सर द हेल्थ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड इन 2017 कंटेन्स दिस, तो यहाँ 2017 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब आपने पॉलिसी पढ़ी. अगर आपने जैसे ही कहा 2017 वर्ड पहले सेंटेंस में, मैं समझ गया इसको पता है. और अगर आपने 2017 नहीं कहा तो मुझे पता चल गया कि इस आदमी को नहीं पता. तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं को तैयारी करने में मैं बार बार कहता हूँ ओरिजिनल सोर्स पे जाइए. सो वन ओरिजिनल सोर्स इज वेबसाइट्स. एंड व्हेन आई से वेबसाइट्स, वेबसाइट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेबसाइट ऑफ नाबार्ड, वेबसाइट ऑफ सेबी, website of startupindia.com for everything relating to startup and entrepreneurship, website of SIDBI, then you have website of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs. Now these are some of the good examples I am giving you. So go to the original. इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए. ऐसे ही आपने मान लीजिए इन्फोसिस में 2 साल नौकरी की हुई है पहले और अब आप इंटरव्यू दे रहे हैं. यू आर बाउंड टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन इन्फोसिस. और इन्फोसिस के बारे में अगर आपको जानना है
don't go to the website, go to the annual report of Infosys, annual report of the ministries, annual report of the RBI, annual report of the SEBI, annual report of SIDBI. That is another area where I would think that you need to read annual reports, original website. Third is speeches. If you go to RBI website, drop down box में आपको speeches मिल जाएगा. गवर्नर्स, डिप्टी गवर्नर सबकी स्पीचेस होंगी. कभी कोई स्पीच मॉनेटरी पॉलिसी पे है, कभी वो फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी पे है, कभी किसी चीज़ पे है, कभी इकनॉमी के ऊपर है. अब आप सोचिए कि आरबीआई गवर्नर की स्पीच बनाने के लिए पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट है उनका. 15, 20, 30 लोगों ने रिसर्च करके उसकी स्पीच बनाई. तो उसकी स्पीच में जो निचोड़ मिलेगा आपको स्टैटिस्टिक्स का, आइडियाज़ का, ग्लोबल पर्सपेक्टिव का, उतना अच्छा आपको कहीं पर नहीं मिल सकता. अगर आज मेरे को कल कहीं कॉलेज पे टॉक देने के लिए इंडियन इकनॉमी पे बुलाया जाए तो शायद मैं सिर्फ 2 ही सोर्सेज देखूंगा. एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की साइट, और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लास्ट की 2-3 स्पीचेस. एंड माई टॉक विल बी रेडी. आई विल नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम इन गूगल सर्च एंड दोज काइंड ऑफ थिंग, राइट. सो यू शुड नो द सोर्सेज, एंड सोर्सेज अगेन आई एम रिपीटिंग, ओरिजिनल सोर्सेज इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. जैसे आपने प्रीलिम्स की तैयारी में एनसीईआरटी की पढ़ाई की थी, मैं उसी को इससे इक्वेट कर रहा हूँ. उसी तरह से आपको ओरिजिनल सोर्सेज के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए. वहाँ आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, वहाँ आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलेगा. तैयारी करने का एक और पहलू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पीयर ग्रुप डिस्कशन. अब आप करोल बाग में रहते हैं, राजेंद्र नगर में रहते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं, आपके साथ 6, 8, 10, 15 लोग तैयारी कर रहे हैं. 3-3, 4-4 या 5-5 के ग्रुप्स बनाइए. ट्राई टू हैव स्लाइटली डाइवर्स पीपल इन ईच ग्रुप. ऐसे आप 3-4 ग्रुप्स के आप मेंबर बनिए. जो आइटम डिबेटेबल हैं, जैसे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की आज हम बात कर रहे हैं, एवरीबडी कैन हैव वेरी डिफरेंट व्यू एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन. डिस्कस इट. एक दूसरे का इंटरव्यू लीजिए, एक दूसरे का व्यू पॉइंट जानिए. और यहाँ पर जो आपकी पीयर ग्रुप लर्निंग होती है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक तो आपको दूसरे आदमी का पर्सपेक्टिव मिलता है जो आपने सोचा ही नहीं था और या पढ़ा नहीं था, और दूसरा आपको बोलने का तरीका आता है कि आर यू यूजिंग द राइट वर्ड्स और नॉट राइट वर्ड, क्योंकि आपस में आप लोग एक दूसरे को फीडबैक देते हो. सो पीयर ग्रुप लर्निंग इज येट अनदर आइडिया. सो बेसिकली आई हैव टोल्ड हियर इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, वन इज रजिस्टर्ड एंड सेकेंड इज peer group. These 2 important things I told. Now I come to the last part of my talk, and the last part of my talk is the day of the interview. So when you have to go for the day of the interview, very important thing is definitely reach before time. That goes without saying, because आपको एक हॉल में बिठाया जाता है, आपसे कुछ फॉर्म भरवाए जाते हैं, और वहाँ पर my suggestion is to talk less, keep quiet, only listen, don't talk. सुनिए, बोलिए मत, राइट. एक छोटा मोटा शू क्लीन का कोई ले जाइए, पैच या जो कुछ भी है वाइप करने का. हैंकी आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए. कई बार आपको स्ट्रेस होता है जब आप घुसते हैं इंटरव्यू देने के लिए, पसीना आ रहा होता है, और कई बार प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड बोलते हैं यू आर लुकिंग स्ट्रेस्ड, हैव ग्लास ऑफ वाटर. इस तरह की सिचुएशन होती है, तो अगर आपकी जेब में अपना रुमाल है, आप कम से कम अपने माथे का पसीना पहुँच सकते हैं. So carry a hanky, which normally you may not be carrying. So please be careful about these things, and please be very careful about dress. Now, dress is a very important thing, which unfortunately is not given as much importance in mocks as it should be given. अब गलती इसमें लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं सूट पहन के जाना, which is fine. और स्पेशली अब सर्दियों में होगा, सूट पहनना इज वेरी मच इन ऑर्डर. सवाल ये है, सूट तक तो ठीक है, टाई पे गड़बड़ हो जाता है. आपने कभी ज़िंदगी में टाई बांधी नहीं, अब आपने टाई बांध ली, टाई में आपको नॉट लगाना नहीं आता, और उसमें भी जो सबसे बड़ी गलती आपकी होती है वो होती है आपका जो कॉलर है उसका नेक और कॉलर के बीच का जो गैप है वो पता चला 2 उंगली 3 उंगली के बराबर है, तो आपकी टाई भी झूल रही है और कॉलर भी झूल रहा है, या वो इतना टाइट है कि आपकी गर्दन जकड़ी हुई है, आप ठीक से बोल भी नहीं पा रहे. सो आइदर सिचुएशन इट इज़ बैड. ऐसे ही चॉइस ऑफ द टाई. अब स्ट्राइप्स आउट ऑफ फैशन है, आप स्ट्राइप वाली टाई पहन के चले गए. आजकल नैरो टाइप चल रही है, आप ब्रॉड टाइप पहन के चले गए, और वाइस वर्सा आजकल ब्रॉड टाइप चल रही है, आप नैरो टाइप पहन के चले गए. आपकी टाई जो है वो मैचिंग नहीं है. कभी फैशन आता है सेम कलर की टाई पहनी जाती है शर्ट के साथ,
कभी अपोजिट कलर की, आपको पता ही नहीं आजकल चल क्या रहा है, तो आपने टाई तो पहन ली पर टाई पहननी आपको नहीं आती। तो इन सच सिचुएशंस माय पर्सनल एडवाइस इज अवॉइड। गलत होने से या अनकंफर्टेबल होने से अच्छा है कि ना पहने। दैट इज़ वन। You know, the suit, it is not necessary to wear. Let me give example of ladies. Earlier, lady used to come in cotton sarees, which were duly colored, starched, and the color of the sari was also quite often very light color, closer to off-white kind of thing. Today, it is changed. And ladies also come in designer suits. What is important is your dress should be formal. Formal in the sense tomorrow you will wear the same dress in the office. That is the meaning of the word formal. ये नहीं है आप वो कपड़े पहन के आ जाएं जो आप कल ऑफिस में पहन के नहीं जा सकते. So suit is not a prerequisite, but if you wear suit, please experiment to wear it in the mock interviews. Same shoes, same holds good for shoes. Your shoes must be, if new, must be comfortable, and you must use the same shoes on the day of the interview. Not that on the day of interview you are wearing clothes which are brand new, you have not tested, tried or got used to. तो थोड़ा सा उसमें used to हो जाना चाहिए, वो वाले कपड़े पहन के आपको mock interview में practice कर लेनी चाहिए. Now there are two parts to it. One is what else on the day of the interview. Please remember, on the day of the interview there's a lot of wrong information available on the net कि मेरा इंटरव्यू लंबा हो गया, मेरा इंटरव्यू छोटा हो गया, वगैरह वगैरह. Please remember, these are misleading things. Interview slot is 30 minutes and it is the duty of the president of the board to see to it that all candidates get, if not equal, almost equal time. So एक इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद दूसरा इंटरव्यू शुरू होने के बाद board members discuss amongst themselves and establish a consensus for giving marks. And marks are given just before lunch when finally a joint secretary level person, not level, joint secretary of UPSC personally comes to the room and he gets it signed by all the members, which marks are given by consensus. तो marks तब decide होते हैं जब candidate चला जाता है, भरे तब जाते हैं just lunch से पहले या before the close of the day in the evening. That is around 5:05, that kind of thing. तो प्रैक्टिकली जो 30 मिनट्स मिलते हैं वो 28-29 मिनट तक हो जाते हैं, आप ये मान लीजिए. सो द इंटरव्यू कुड बी इफ़ एट ऑल एक्सटेंडेड, बहुत बढ़ गया किसी का तो 32-33 मिनट हो सकता है, बट आई हैव नॉट सीन इवन गोइंग अप टू 35 मिनट्स. सो यू गेट लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. ऑल कैंडिडेट्स गेट ऑलमोस्ट इक्वल टाइम. किसी का बहुत आउटस्टैंडिंग या डिफरेंट टाइप का इंटरव्यू हो गया, ही मे गेट 1 or 2 or 3 minutes extra. That's the only thing. So interview will be 27 to 33 minutes. That's the outer limit I'll think. So when you come out of the interview, please remember to recall how did you answer, not what did you answer. How did you answer is more important, and that will tell you as to how did you perform. And believe me, after that, don't get into transcript business, don't get into wasteful activities. That is my suggestion and advice. As far as mock interviews are concerned, this is very important. Now, should one take mock interviews or not? I would generally say yes, one should take mock interview. Why should one take mock interviews? Because you get used to the way you have to walk into the room. You get used to greeting the board members. You get used to sitting on the chair. Now, sitting on the chair itself is an art. कैसे बैठना है आपको वो सीखना चाहिए. नहीं पता तो पूछिए आप जहाँ मॉक देने जाते हैं. And quite often you get right advice in such places. Where do you keep your hands? Is it on the armrest? Is it like this? Like ladies always keep it in their lap or on their leg. They keep their hands. So ladies का more or less uniform होता है. Gents का थोड़ा confusing होता है. हाथ कहाँ रखने हैं. और I have already told about the dress. And mock interviews tell you how to hold your breath for 30 minutes. That's important. And unfortunately, many of the mocks कहीं 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है, कहीं 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, कहीं 25 मिनट में ख़त्म हो. Please don't care, don't bother about it. That's not important. You should plan for 30 minutes of your interview. When you give mock interview, what do?
So we have already discussed anticipation of question, anticipation of answers, preparation of registers, etc. What is important is that when you get feedback, many candidates wrongly ask, sir मुझे कितने marks मिलेंगे? What is your assessment of my performance here? Please never ever do that, because I have seen most of the boards in mock interview, just to please the candidate, tell him higher marks, which is unfortunately wrong, unethical, but true. So never ever ask how many marks will I get, because it is meaningless. What is important is get constructive feedback. Where and how should you improve your performance? That is $1 million question. So get constructive feedback after each mock. Please record it immediately after that. And that is the single most important outcome of your mock interview. Okay? Now, how many mock interviews? This is another question. So I have seen people taking from 2 to 12. I would generally recommend anything like 3, 4, 5, 6, not less, not more. And that will also depend whether you are coming from outside Delhi or whether you are residing in Delhi, because you have to see your infra arrangement also. And another very important thing is, आपको बिना तैयारी के मॉक देना चाहिए और बाद में क्लोजर टू इंटरव्यू देना चाहिए, या आपको मॉक कभी भी बीच में दे देनी चाहिए, या आपको मॉक डिफरेंट गैप्स पे देने चाहिए, वन विदाउट तैयारी, वन इन बिटवीन तैयारी, वन एंड ऑफ द तैयारी. सो दैट आई लीव टू द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स कन्वीनियंस and choice and mindset. But one could do spacing of mocks, or one may not do spacing of marks. But my experience is most of the people who come from outside, they many times do 3 mock interviews in the same day, which to my mind is not a very healthy thing or a very good thing. I have talked about mock interviews in great detail, and I have also talked about the art of giving answer depends on A, anticipation of the question. B, what I have not covered is the flow of questions and flow of answers. Flow of questions will be normally जो पिछले बोर्ड मेंबर ने आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा या क्वेश्चंस पूछे, उनमें से ही कनेक्टेड कोई और क्वेश्चन अगला मेंबर इसलिए पूछता है क्योंकि पिछले मेंबर ने छोड़ दिया था तो अगला मेंबर पूछ लेता. सो यू शुड बी रेडी टू आंसर इन कॉन्टिन्यूटी. अब बोर्ड मेंबर्स में 5 में से एक तो चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब ऑफ द बोर्ड हो गए. 4 लोग जो होते हैं उसमें से 2 लोग इनवेरिएबली सर्विस के होते हैं, सर्विस मीन्स ब्यूरोक्रेसी. 2 में से एक डिसाइडेडली रिसेंटली रिटायर्ड सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट गवर्नमेंट होता है, और दूसरा वाला IPS हो सकता है, IRS हो सकता है, इंडियन अकाउंटिंग सर्विस का हो सकता है, समटाइम्स फॉरेस्ट सर्विस का भी हो सकता है. तो ये 2 हो गए. बाकी 2 में से नॉर्मली एक आदमी साइंटिस्ट या इंजीनियर होता है, वेदर ही इज़ वर्किंग इन लैब्स लाइक DRDO, CSIR, और वेदर दैट जेंटलमैन इज़ वर्किंग इन NIT और IIT और गुड यूनिवर्सिटीज़. और जो चौथा आदमी होता है वो या लॉ का होता है या मैनेजमेंट का होता है या कभी कभी रेयरली सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है. दे ऑल्सो कम फ्रॉम वेरी गुड इंस्टीट्यूशन एंड मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. ओके, इन वन पर्टिकुलर ईयर आई रिमेंबर आई नोटिस्ड उसमें सारे NLU के वाइस चांसलर बुलाए हुए थे उस पर्टिकुलर ईयर में, विच आई डोंट फॉरगेट. सो कभी कभी ये चेंजेस होते रहते हैं. अब इन चारों का पूछने का तरीका अलग होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब ब्यूरोक्रेट आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो नॉर्मली पैराफ्रेजिंग थोड़ी लंबी चौड़ी करता है, तो उसका क्वेश्चन इटसेल्फ गोज इनटू 2, 3, 4, 5, 6 सेंटेंसेस एंड देन ही आस्क्स द क्वेश्चन. जब नॉन IAS या नॉन सिविल सर्वेंट आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग हो सकता है, तो जवाब देने का तरीका भी अलग हो सकता है. तो जो नॉर्मली IAS ऑफिसर या सिविल सर्वेंट पूछते हैं उनका टोन और मैनर कन्वर्सेशनलिस्ट रहता है, जबकि जो नॉन सिविल सर्विस वाले होते हैं उनका नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मोड में होता है. तो दिस इज अनदर थिंग यू शुड नो about the structure of the board and the way the questions are asked. But again, I am telling you, the flow of the next question comes from the earlier one. I remember one particular incident I must share with you. This happened many years back. Candidate आया, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो रहा था, और स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड 3-4 मेंबर्स ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, एंड
None of us was happy. And the last person was, I remember, was a lady in our board. She was additional chief secretary, retired from Maharashtra. और उन्होंने कोई जेंडर इशू पे सवाल पूछ लिया कैंडिडेट से, और कैंडिडेट ने इतना अच्छा जवाब दिया. उसके बाद जो उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, उसने इतने अच्छे जवाब दिए कि हमारा पूरा बोर्ड का मोड और पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया. सो दिस वॉज मे बी हिज गुड लक दैट ही वॉज आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑन जेंडर, and then only his true potential was explored. So this example, I never forget this particular example. There was another CAPF का पहली बार 2011 में इंटरव्यूज चल रहे थे. बाई चांस आई वॉज देयर इन द बोर्ड. तो ये जो आर्म्ड पुलिस वाले होते हैं या कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस वाले होते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो इनके जो जूते होते हैं उसमें तस्मे होते हैं, लेसेस होते हैं. सो दे आर नेवर विदाउट मुकस्सिम शूज़ जिसमें लेसेस नहीं होते, लेदर शूज़. वो लेदर शूज़ प्लस लेसेस वाले फॉर्मेट में होते हैं, चाहे पुलिस में हो, आर्मी में हो, किसी भी यूनिफॉर्म वाली सर्विस में हो. तो उस दिन एक कैंडिडेट आया, खाली उसके जूते वैसे थे, मुकस्सिम शूज़, विदाउट दैट लेसेस ऑन द शूज़. सो इट वॉज वेरी ऑब्वियस, ही वॉज वेरी नोटिसेबल. वी स्टार्टेड इंटरव्यूइंग हिम. एंड अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज हिज क्वालिफिकेशन वॉज PhD. एंड these were two unique things in this particular interview. Interview started, interview went very well, everything was going very, very, very well. The candidate left. And as I was telling you earlier, consensus से नंबर देते हैं, मार्क्स देते हैं. तो अब हमारी मार्क्स देने की जब बारी आई, we were all confused. Why we were all confused? Because we found the candidate to be very good. But we also found him to be very good for police academy as a instructor, because वो पढ़ा लिखा आदमी था और अच्छी क्लास वगैरह ले सकता था और उसकी conceptual knowledge बहुत अच्छी थी. But will he be a good fit officer in the field or not? That we started discussing and debating. And that day, for the first time, even in my own mind, we were discussing कि भाई हम इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के मार्क्स दे रहे हैं या हम उसका आगे का करियर देख के उसके नंबर दे रहे हैं. तो आई डोंट रिकलेक्ट, आई डोंट रिमेंबर कितने नंबर दिए या नहीं दिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसी भी कई बार स्ट्रेंज सिचुएशंस इंटरव्यू में हो जाती हैं. तो आई थॉट आई जस्ट कोट दीज टू एग्जांपल्स which have happened with me in my lifetime. So I'm just telling you about that. So the art of answering question, I come back to, you should know factual answers must be short, straight, yes or no. And now I come to another area where people say, sir, if I don't know, should I admit that? I always say yes, because your integrity is being tested. Then the next question comes, but sir, if I keep on telling I don't know, will I not lose marks? Then my answer is, in 30 minutes course, if you have said no, you don't know in 5 or 6 times, it's perfectly fine. But if you say it 12 or 15 times, obviously it is a very bad idea. It's a common sense thing. So the point is, you should be telling no when you don't know. The question is when you partly know. You know the answer partly. Then you can take the liberty by asking the member, sir, I have part knowledge of this, if you permit, may I? And they always say yes, please go ahead. अब वो जो part knowledge है, आप बोल दें, अगर उसमें से डाइवर्ट करके नया क्वेश्चन बन जाता है, perfectly fine, it goes in good taste. But if you have not answered correctly, completely, it doesn't go against you. So if you know partly, please paraphrase it by putting it upfront that you don't know, rather than आंसर देने के बाद फंसते चले जाएं, उसके बाद आप कहें कि you had part knowledge. That's the wrong way. So this is a very important area. And I come to the end of the interview. End of the interview, you must stand up. You must look cheerful. You must greet the members with cheerful this thing, as if you have enjoyed the conversation. Okay? क्योंकि कभी भी आप किसी से भी मिलते हैं, लास्ट इंप्रेशन आपके जो दिमाग में रहता है, या तो फर्स्ट होता है जब आप किसी से मिलते हैं, या जब वो जाता है तब आपको पता चलता है ये आदमी खुश गया कि ये नहीं खुश गया. सो यू शुड लीव एन इम्प्रेशन दैट यू हैव लेफ्ट एट ए प्लेजेंट नोट, यू वर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस एंड यू हैव एन्जॉयड द कन्वर्सेशन. सो दिस पार्ट मस्ट बी नोटिस्ड, दैट लीव with a good taste and with a cheerful stance. So this is where I would like to close.
Thank you very much. Thank you for listening to me patiently.